Good morning, dear friends. Once again, I am here with electricity, and today's topic is electric potential, potential difference, voltage, and EMF. So, let us start about this point. I tell you one by one about this point: electric potential, potential difference, voltage, and EMF. Okay, what is EMF? What is the relation between EMF? Yeah, you can say what is the name of voltage? Voltage, EMF, and potential difference both are same. Okay, so let us discuss here. Okay, so let's start. First, we start electric potential. Okay, so you see on the screen, its definition is amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point. Okay. According to definition, we assume infinity point. Okay, and suppose we bring a charge to this point. Let us, this point is A, and it is bringing from infinity. ठीक है, जब हम इसको इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाते हैं, ठीक है, तो जो उस चार्ज को लाने में वर्क डन किया जा रहा है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यू सी दैट दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट. ओके, साइंटिस्ट बोल्टा ने ईएमएफ वोल्टेज के बारे में बताया था, जिन्होंने अपने नाम पर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज का यूनिट वोल्ट रखा. ओके, तो रिप्रेजेंटेशन बाय V एंड इट्स फार्मूला, क्योंकि हम वी ब्रिंग अ चार्ज Q एंड वर्क डन W, देन इट्स फार्मूला इज V इज इक्वल टू W बाई Q. ठीक है, वेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन एंड Q इज इक्वल टू चार्ज. ठीक है, इट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है, जूल अपॉन कूलम. ठीक है, जूल पर कूलम को वी कैन से दैट वोल्ट. ठीक है, तो सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एंड that time we do some work done for bringing the charge, then it is called. After electric potential, next topic is potential difference. What is the potential difference? Okay, here we assume 2 points. Suppose this is the one point and second point. We bring a charge from B point to A, charge Q. Then what is the potential difference? Means A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. सो देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट, मीन्स B से हम A तक लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है चार्ज पे, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर फॉर द पोटेंशियल फॉर B इज इक्वल टू BB and here for BA. Then potential difference BA minus BV equal to W by Q. Here write B. Okay. So on infinity we assume that V is equal to 0. हमने जो एक इससे पहले जो बताया था पोटेंशियल, and this is the A and this is the infinity. तो infinity में V आपका है 0. So just we consider that if V is 0, then VA minus 0 equal to W by Q. Okay, here you can say right here V is equal to VA is equal to W by Q. What meaning? Means आपका we assume that infinity क्यों नहीं, infinity for means we take a reference, only we take for reference point. Okay, so on we considered on infinity the voltage is 0, so
if point BV is 0, then what is the potential difference? VA equal to W by Q, और W by Q है क्या? 1 volt. Okay, so how to define volt? एक क्वेश्चन आता है कि आप 1 वोल्ट को डिफाइन करिए. What is the 1 volt? 1 volt is 1 coulomb of charge. वर्क डन जो किया जा रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, दैट इज अ 1 वोल्ट. जब भी हम किसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करते हैं तो जो फॉर्मूला, तो उसमें जो क्वांटिटी है उनको हम कंसीडर करते हैं 1. तो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वोल्ट को. सो लेट अस कंसीडर दैट W वर्क डन इज 1 जूल एंड Q is also 1 coulomb charge. ठीक है, तो then this is the definition of 1 volt. When bring 1 coulomb of charge from one point to another point, that time if work done is 1 joule, then voltage is 1 volt. Okay, and electric potential difference. After this we come the point voltage. Okay, so जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, EMF, ये सब सेम. इनका यूनिट क्या है? सभी का क्या है? सेम, वोल्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. वोल्टेज, voltage is the pressure from an electric circuit power source that pushes charge electron, you can say current, through a conducting loop. Okay, means voltage के ये EMF का ये इसका वर्क क्या है? ये प्रेस करते हैं, मीन्स पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो होने के लिए. ओके, जैसे ही आप देखते हैं कि स्विच आपने ऑन किया, तुरंत आपका लाइट फैन ऑन हो जाता है. उस समय क्या है कि आपने जो डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्टेज अप्लाई किया उसमें सर्किट में. ठीक है, तो वहाँ पे वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को या करंट को प्रेशर दे रहा है. एक प्रेशर है, ये वोल्टेज को आप कह सकते हैं प्रेशर या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, जो प्रेशर कर रहा है कि जिससे इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो होता है, एक धक्का देता है, या कह सकते हैं फोर्स है. ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में एक वाटर टैंक के हेल्प से. दिस इज अ वाटर टैंक और यहाँ पे एक कंट्रोलिंग वाल्व लगा हुआ है. उस समय है क्या? कंट्रोलिंग वाल्व ये क्लोज है, देन यहाँ पर प्रेशर है, बट इसके थ्रू से कोई भी वाटर आपका फ्लो नहीं हो रहा है. अब जैसे ही इस वाल्व को आप ओपन कर देते हैं, आपका यहाँ से वाटर जो फ्लो होकर के इस टब को आपका फुल कर देता है. तो यहाँ पर आपका प्रेशर जब आप क्या लो लेवल पर रहेगा तो प्रेशर कम होगा, हाई लेवल पर रहेगा तो प्रेशर अधिक होगा. तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो अधिक करंट लग सकता है. तो जैसे जैसे आपका वोल्टेज का प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मीन्स क्या है, आपका फ्लो ऑफ रेट बढ़ता जाएगा. यहाँ पर आपको एक सर्किट के माध्यम से दिखाया गया है. ठीक है, कि ये 230 वोल्ट AC सप्लाई है. दिस इज इन ऑफ कंडीशन. ओके, प्रेशर है बट स्विच का है आपका ऑफ है, उस समय आपका ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. और जैसे ही हमने स्विच को ऑपरेट किया, तुरंत इस प्रेशर ने इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाया जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस. और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है दैट इज क्या? दिस इज अ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, जिसके कारण आपका ये बल्ब ग्लो होने लगा, मीन्स वर्क डन होने. ओके, तो एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट. वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इन सभी का यूनिट होता है वोल्ट. यहाँ पर एक और डेफिनेशन दिया गया है, व्हाट इज वोल्टेज इन सिंपल टर्म. ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा. वोल्टेज इज
व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए वोल्टेज जो है एक प्रेशर देता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वोल्टेज है, अब इसको मेजर करने के लिए डिवाइस क्या है, ठीक है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था करंट को मेजर करने के लिए करंट का यूनिट है एम्पियर, तो उसके नाम पर पढ़ा है इंस्ट्रूमेंट का एम्पियर मीटर। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूनिट है ओम, इसके नाम पे पढ़ा है ओम मीटर। सिमिलरली हियर द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, सो इट्स इंस्ट्रूमेंट नेम इज वोल्ट मीटर, ओके। अगेन दिस वोल्ट मीटर इज टू टाइप्स, AC एंड DC। अभी मैं आपको वोल्टेज की इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा कर रहा था। अगेन V is the voltage and instrument name is volt meter, okay, instrument name is volt meter। so ये भी आपका वोल्ट मीटर टू टाइप्स के होता है, AC and DC, okay। अब हम डायग्राम को देखकर कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो वोल्ट मीटर है AC है या DC है, ठीक है। इस डायग्राम से कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वोल्ट मीटर है, अब तो आपके वोल्ट मीटर डिजिटल फॉर्म में भी आ गए, ठीक है। जो डिजिट में शो करते हैं दैट इज डिजिटल फॉर्म, जहाँ पर इस तरह से एरो मूव करता होगा वो एनालॉग फॉर्म है। मीन्स मीटर की कैटेगरी को हम डिवाइड करें कि ये एनालॉग सिस्टम है या डिजिटल सिस्टम है, तो जहाँ पर भी आपको जिस इंस्ट्रूमेंट में या आपका एम्पियर मीटर हो, ओम मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, फ्रिक्वेंसी मीटर हो, जहाँ पर इस तरह से नीडल मूव करता है ऐसे, ये इस तरह से लगा हुआ जिस मीटर में, और ये मूव करे और इंडिकेट करे कि इतना वो क्वांटिटी है, तो ये हो गया आपका एनालॉग सिस्टम, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको आउटपुट जो है डिजिट फॉर्म में मिलता हो, डिजिट फॉर्म का मतलब 1 2 3 4 5 इसके फॉर्म में मिलता हो, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मीटर, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर इस एनालॉग मीटर को हम देखकर कैसे फाइंड करेंगे कि ये एनालॉग मीटर हमारा AC मीटर AC पे वर्क करेगा या DC पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था करंट में सेम यहाँ पर भी है। हम इस V को देखते हैं, जो भी हमारा वोल्ट मीटर होगा उस पर एक सिंबल यूज किया जाएगा V, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जनरली लैब में यही होता है कि पूछा जाता है कि एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर रखा रहेगा और इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई का है कि इंस्ट्रूमेंट पे भी बना होगा दैट इज अ वोल्ट मीटर। फिर देन अगेन कि ये आपका वोल्ट मीटर AC पे वर्क करेगा, DC पे वर्क करेगा या दोनों पे वर्क करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ टेक्निक का। जिस V के बिलो में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया गया हो, तो यू अंडरस्टैंड दिस इज वर्क ऑन DC, डायरेक्ट करंट पे वर्क करेगा, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट पे वोल्ट मीटर पे इस तरह का साइन वेव का सिंबल बना होगा, दिस इज वर्क ऑन AC, ठीक है। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट के नीचे साइन वेव और ये एक माइनस का सिंबल बना होगा, वर्क ऑन बोथ, मीन्स ये आपका वोल्ट मीटर दोनों पे वर्क करेगा, AC पे भी वर्क करेगा और साथ में DC पे भी वर्क करेगा। कहीं कहीं पे ये सिंबल को हटा करके VC DC लिखा होता है, यहाँ पर आपका AC लिखा होता है और यहाँ पे AC ऑब्लिक DC लिखा होता है। ये आसान हो जाता है पहचानना, AC ऑब्लिक DC या DC या AC लिखा है। अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो वो सिंबल लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही वोल्ट मीटर में भी आपका मिली वोल्ट मीटर, ठीक है, मीन्स आपका इसका भी यूनिट है कि 10⁻³ है, ठीक है। तो मिली वोल्ट मीटर, ऐसे 10⁻³ है तो ये आपका किलो वोल्ट में हो जाएगा, 10⁻⁶ है तो आपका मेगा वोल्ट में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल एंड लार्ज यूनिट ऑफ वोल्टेज।
ठीक है, तो आई थिंक देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द इंस्ट्रूमेंट मीन्स voltmeter. Next, here there are some questions. What is the voltage and current? So you can see means the voltage is the difference in charge, okay, between 2 points. Voltage को define किया गया, and current I already told you about current. Current is the rate at which charge is flow. Means दोनों में क्या अंतर है? मीन्स आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज द डिफरेंसेस इन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में चार्ज जो है, ठीक है, जैसे हम बैटरी को ले लें, टेक अ बैटरी, तो दोनों टर्मिनल होंगे, दोनों पॉइंट हो गए, तो उनके बीच में चार्ज में क्या डिफरेंस है, दैट इज द वोल्टेज. बट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वही चार्ज जब फ्लो होने लगता है तो किस रेट से फ्लो होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, so here also there are so many questions on voltage and current. Let us see one by one. What is another name of voltage? Already told you about this. Another name क्या है, EMF भी कहिए, potential difference कहिए, ठीक है. तो this is another name of voltage. Is voltage the force? Yes, voltage is a force, pressure. Okay, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है. व्हाट डज अ 0 वोल्ट? हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ 0 वोल्ट? 0 वोल्ट का मतलब ये हो गया, व्हेन यूज्ड व्हाइल मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस, 0 वोल्ट सिंपली मीन्स द 2 पॉइंट्स इन मेजरमेंट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मीन्स आपका एक जगह पोटेंशियल 0 और एक जगह हाई हो, देन उसमें करंट आपका फ्लो करेगा. या वन पॉइंट पे आपका वोल्टेज 0 हो और अनदर पॉइंट पे आपका माइनस हो, तो भी आपका करंट फ्लो करेगा. यही हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट में. अल्टरनेटिंग करंट का अगर वेव डायग्राम आप देखेंगे तो ये क्या है, ये प्लस है, और यहाँ से आपका देखिए कैसे ये माइनस में फ्लो करेगा. तो यहाँ पर तो आपका पोटेंशियल क्या है, 0 है, बस डाउन में क्या है, -1 -2 -3 ऐसे होके ये जा रहा है. ठीक है, तो आप जानते हैं ये हाई लेवल पे हो गया और ये क्या हो गया, लो लेवल पे, बिकॉज ये तो दिस सिंबल माइनस, ठीक है, बॉटम से करंट. ओके, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 है. ठीक है, तो यहाँ से तो आपका ये फ्लो गया, अब यहाँ से आपका 0 से और ये कम हो गया, -1 -2, दिस इज द लेस नंबर. सो करंट आपका लो लेवल की तरफ हमेशा फ्लो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन is 220 volt more dangerous than 110 volt? Yes, वोल्टेज आपका बढ़ गया तो आपका ऐसा है कि आपका ये डेंजरस होगा 110 वोल्ट से. एक किस्में मैं वो क्वेश्चन खोज रहा हूँ, कैन यू डाई फॉर्म फ्रॉम 220 वोल्टेज? यस, 220 वोल्टेज से आप अगर प्रॉपर आपको अगर करंट मीन्स लग गया, प्रॉपर ग्राउंडिंग है, आपका ग्राउंड टच में है, मीन्स आपकी बॉडी आइसोलेटेड नहीं है और आपने स्लीपर नहीं पहना या किसी मैट पे या मीन्स बेड पे नहीं है, क्लोथ पे नहीं है, ड्राई प्लेसेस पे नहीं है, तो उस समय 220 वोल्टेज भी आपके लिए डेंजरस है. वहाँ भी आपको करंट लग सकता है और यहाँ तक लग सकता है कि डाई भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर इन सभी में से मीन्स आप अपने आप को आइसोलेट किए हुए तो 220 वोल्टेज बस ये होगा कि आपको झटका देगा, अन्यथा आप डायरेक्ट ग्राउंड टच में तो करंट हैवी करंट लगेगा. ये एक दो क्वेश्चन है, मैं आपको ये 50 सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा. एक जो क्वेश्चन है, हाँ यस, ये AC इज मोर डेंजरस देन DC. ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट का, तो जो डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है 220 वोल्टेज AC सप्लाई, तो इतना हम 220 वोल्ट DC लें, ठीक है, तो दोनों में ये डेंजरस आपका 220 वोल्टेज AC होगा, क्योंकि ये आपका जो 220 वोल्टेज है दिस इज एवरेज RMS वोल्टेज. ठीक है, दिस इज RMS वोल्टेज, बट 220 वोल्टेज आपका ये DC फिक्स है. तो ये RMS वोल्टेज
कन्वर्ट होता है पीक वोल्टेज में। यहाँ पर एक मैं लिखा हूँ आपको 220, दिस इज आरएमएस इनटू √2 ये होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पीक वोल्टेज, मीन्स आप कर सकते हैं पीक वोल्टेज इक्वल टू √2 इंटू VRMS। ठीक है, तो जो आप 220 वोल्टेज ऐसे सप्लाई, दिस इज द आरएमएस वोल्टेज, और जैसे इसमें मल्टीपल कर देंगे √2 का, दिस इज द पीक वोल्टेज। और ये पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखते हैं 220 इंटू दिस इज द वैल्यू ऑफ √2 1.41, देन पीक वोल्टेज इज 310, दिस इज द मोर। अब यहाँ पर 310 इज मोर देन 220 वोल्टेज DC। सो जाहिर सी बात है, आपका यहाँ वोल्टेज अधिक हो गया तो आपको करंट भी अधिक लगेगा। सो यू कैन से दैट AC इज मोर डेंजरस इन कंपेरिजन ऑफ DC। अगर आपका ये 220 वोल्टेज और ये आपका पीक वोल्टेज ना होगा कि 220 वोल्ट AC होता, तो उस केस में कहा जा सकता है कि DC डेंजरस। बट यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज आपका इंक्रीज हुआ मीन्स DC डेंजरस। ठीक है, so here another question is, can I touch neutral wire? No, never touch to neutral wire, because neutral wire work from returning the current. Okay, so never touch to neutral wire. Okay, so there are some questions. Another question regarding electricity and voltage and current. So one by one you see that, and I send you PPT. Okay, thank you very much.